अनअकैडमी का मैं ये विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कल का जो डिस्कशन चल रहा था ना, उसी पे मैं अनअकैडमी व्हेन दे केम इनटू द मार्केट, ओके, मुंजाल जी जो है, ही इज फ्रॉम बैंगलोर ओनली, सो दे हैव स्टार्टेड दिस वन इन बैंगलोर, and in the beginning I was associated with Unacademy for some times, okay. So they were having very much reluctant in terms of going to the markets, whereas another company was known as Baiju, okay. They got funded initially and they put up sales team just to get the subscription, okay. But whereas Unacademy, who was much into developing some things online which can be a complementary to the offline project, offline education, so they were more of in terms of helpful to prepare for the examinations, okay. And then thereafter in 2018, Karan Shroff joined Unacademy as a VP marketing, and he changed the complete scenario of how this online marketing, online education's marketing was happening right now in India. So Ravi ji, you are talking about Khan Academy India. The Khan Academy actually California की company है. No sir, I am talking about Unacademy India, not Khan Academy. हाँ, अच्छा, yes, okay. Which is started by Gaurav Munjal. Yes. Yeah, Gaurav Munjal and also Roman Sen is also there. Yes. There are three people. XIS, yeah. Yes, there are three people who started this. So when Karan joined, to be giving a background, Karan was who was heading Xiaomi marketing since Xiaomi inceptions in India. Xiaomi, not Xiaomi. Xiaomi marketing. So Karan Shroff, he took over the marketing, and then he designed 2 programs for Unacademy, giving a different angle to the online education systems and associations of these systems to the offline, how it is going to be complemented. So he started bringing a lot of people who excel in their field, like from sports, from media, from televisions, from educations, and also people from different sectors altogether, from world and universities, and people from Bollywood and Hollywood too. So he designed a program where the children or the persons who is pursuing the educations for a particular degree, he need to have an associations with that particular, like, see, if I want to play sports games, so I pursue as a Virat Kohli or maybe Ganguly as my role model, or to be like straight away I want to go ahead in that way. So students also feel the same to get and a kind of input from those people on online platforms, and it give a purpose to enroll and that kind of things. So that is how he changed the marketing of online, whereas Baiju and other people who were following only the sales principle to get into the online marketing, so they were more of focused on the replacement, whereas Unacademy got into the complementary statement of offline education. There are beautiful case written by Karan Shroff. I will share the link to in the WhatsApp group, so which will give you a purpose to understand how we can complement this online educations with offline setup. Yeah. Yes. Okay, so Neeraj, this yes, was please. Acha, idhar bhi Ravi, yeah, please finish. Yeah. So this was one aspect of the scenario which I was talking about yesterday, like how this online things, online educations will be in complement to offline educations, but it will not have an entire stakes edge of in the primary or maybe up to secondary educations, but of course higher educations will have a greater influence in of online one. And then yesterday we were so meanwhile I will be coming to the points. So here on any questions or anything want to know, I can be able to take up those things and we'll continue. Compliment wala, please explain that complement wala cheez a bit more, ki complement kaise hua exactly. See, complementary in the sense, college ko? let's say not to the schools and college, it will be complemented to the pursuer, like students. Okay. Let's say I am taking a course
I am preparing for MBA and I am going, or I am preparing for IPS. Okay. So I go to coaching institutes and I get coaching from there physically. Okay. But there are few online modules which is there, but they do not have particular, like as in case of Baidu, they have a complete setup, recorded module where you will get the input, and then that is not an interactive sessions in terms of getting it. But here what Unacademy is doing, he is complementing that course itself. Let's say you take a IAS preparations course, okay, but at the same time he's bringing people in front of you for your interactions, where you can have interactions with the people whom you admire in that particular field. Let's say in the field of sports, he brought Virat Kohli and Ganguly on the platform to interact with the students who is pursuing that segments of the courses. He brought Anushka Sharma. Yesterday there were from IS, he brought Unacademy brought our Tamil Nadu Kiran Bedi and all the that section of IPS officers. Then a lot of sports people came into, lot of business people came into in that program. Yesterday was what is Zuckerberg name, I am forgetting that lady name. Okay, she was the lecturer over in that academy session. Okay, I mean, Sandy, the number 2 of Facebook, yeah. Sandy is the number 2 in Facebook. So no, she started the media Facebook media part, media Zuckerberg part. So she's a lady. I am forgetting the name. 1 minute, I'll give you the name. She was there in the sessions. Initial name I am forgetting. What is his name? Okay, meanwhile, other people can contribute. I'll come back. Neeraj, please. Yes. ये विशाल जी, तो रवि जी ने काफी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह कर दिया एक्सप्लेन. लेट मी ऐड अ बिट मोर टू दैट. रोमन सैनी एक आईएएस हैं. ही वाज डॉक्टर. 22 साल की उम्र में जैसे साथ एमबीबीएस किया, साथ ही गॉट सेलेक्टेड इनटू आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. एंड व्हेन ही वाज ट्रेनिंग, अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन मसूरी, during that time only he decided कि ये मेरे लिए नहीं है, I need to get out of it. रोमन सैनी 2014 के अराउंड की स्टोरी है ये. क्योरा करके एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखते हैं, बहुत एक्टिव थे. एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, मतलब जो भी रोमन सैनी लिखते थे, और वो आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए खासकर पूरा ब्लॉग बनाते थे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है तरीका, और वो सब. तो बहुत फॉलोअर्स थे उनके. इसके बाद रोमन सैनी का कुछ माइंड इस तरफ शिफ्ट हुआ कि मुझे टीचिंग में ही मजा आता है और मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह में नहीं जाना है. तो 2015 में उन्होंने छोड़ दिया. और इस मूव के बाद रोमन सैनी बिकेम अ हीरो. ठीक है, कि एक बंदा जो 22 साल की उम्र में, उस टाइम पे वो सबसे छोटा आईएएस था, उसके बाद एक 21 साल का भी लड़का आ गया है, लेकिन उस टाइम पे अपने आप में हीरो था कि 22 साल का लड़का आईएएस बन गया है. और उसके बाद उसने वो आईएएस भी छोड़ दिया तो वो और बड़ा हीरो हो गया है. तो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया. यूट्यूब चैनल बाद में शुरू किया. उनकी कहीं मुलाकात हुई मुंजाल से. मुंजाल वाज मतलब बिजनेस माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन. उन्होंने उन एनर्जीज को सारा फोकस करने की कोशिश करी कि कैसे हम इसके अराउंड कुछ बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं. तो उन्होंने दिस स्टार्टेड, दे वर वेरी रिलक्टेंट कि करना कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो उन्होंने क्या किया, एक अनअकैडमी नाम का यूट्यूब पे चैनल बना लिया. पहले सबसे पहले इनका चैनल ही आया था यूट्यूब पे, जहाँ पे रोमन सैनी लेक्चर देते थे. ठीक है, और बाकी की सारी चीजें जो हैं इधर उधर, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, ये मुंजाल ही था, जब तो तीसरा बंदा तो था भी नहीं, ये सब मैनेज कर रहे थे. और रोमन सैनी का जो यूट्यूब चैनल है वो 2 साल चला, 2015-16, और बहुत ज्यादा मतलब humongous पॉपुलैरिटी जिसको मैं कहूँगा, ऑल काइंड ऑफ सर्कल्स. रोमन सैनी का एक तरीका ऐसा है बताने का कि आप भी सुनोगे तो मजा आ जाएगा.
दूसरा, वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वो इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, मतलब ह्यूमन बिहेवियर और ये सारी चीजें, इस पे भी उन्होंने बहुत कुछ काफी लेक्चर सीरीज बनाई है। 2016 में जब वो यूट्यूब चैनल इतना पॉपुलर हो गया, तो इनको अल्टीमेटली सोचना पड़ा कि हम अपना ही क्यों नहीं कर लेते हैं, तो इन्होंने अनअकैडमी करके अपनी ऐप बना ली, और वो जो भी कंटेंट ऑलरेडी था वो सारा उठा के इस प्लेटफॉर्म पे ले आए। धीरे धीरे बनते बनते चीजें स्टार्ट हुई, तो पहले तो सारा प्री रिकॉर्डेड ही था, धीरे धीरे उसको इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी इंटरेक्टिव क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, और अच्छे टीचर्स को हायर किया, और इन्होंने स्टार्टिंग से फोकस किया कि हम फ्री में इतना कुछ बांट दें कि लोग वैसे ही फैन हो जाए प्लेटफॉर्म के, और बाद में एक छोटा सा पार्ट रखेंगे प्रीमियम का, जहाँ पे लोग एक बहुत कम पैसे में कंपैरेटिवली, मतलब जो उस टाइम पे चल रहा था सब कोचिंग का सीन, उससे बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम पैसे में लोग हमारी कुछ मतलब ले ले एक मेंबरशिप, और उसमें फिर वो लाइव क्लासेस, क्वेश्चन आंसर और डाउट क्लियरेंस और वो सारा, और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो कंटेंट है वो तो ओपन हो ही जाएगा। इस तरह से करके स्टार्ट किया। अब बात करते हैं बायजू के साथ कंपैरिजन की। बायजू की कहानी बहुत खतरनाक है। बायजू इससे बड़ा गेम प्लेयर है। बायजू ने प्रोडक्ट बिल्डिंग स्टार्ट करी 2010 में। उससे पहले बायजू का नाम अपने आप में इतना बड़ा था कि वो स्टेडियम्स में क्लासेस लेता था। बड़े बड़े मतलब उनका इस तरह से लेक्चर चलते थे कि हजार हजार लोग एक साथ बैठ के पढ़ते थे, और बहुत प्रॉफिटेबल मॉडल था उनका वो जो चल रहा था। लेकिन बायजू ने जब देखा कि वेव आ रही है इंटरनेट की, तो उन्होंने भी इस तरफ शिफ्ट किया, पिवट किया पुराने मॉडल को, और ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया, और 4 साल लगाए प्रोडक्ट डिजाइन करने में। सिर्फ 2014 में जाके बायजू ने अपना प्रोडक्ट उतारा है। 4 साल बायजू के अगर आप इंटरव्यूज देखोगे रविचंद्रन बायजू के, वो आज भी बोलता है कि मेरे टेस्ट केसेस रहे हैं हजारों स्टूडेंट्स, एंड आई एम थैंकफुल टू देम, वो मेरे टेस्ट केस बने, और मैंने अपने प्रोडक्ट को 4 साल उनके ऊपर अप्लाई कर करके डेवलप किया। और बायजू का सबसे बड़ा, आज मैं बताता हूँ, डेकाकॉन हो गया है अभी, ठीक है, 10 बिलियन या 11 बिलियन की वैल्यूएशन है। अभी भी बायजू में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, अराउंड 37% उसका स्टेक है। बायजू ने कभी भी इन्वेस्टर्स को सामने से अप्रोच नहीं किया। उसने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि लोग आके मुंह पे पैसा फेंकने लग गए। कोई भी, आप इंडिया का कोई भी स्टार्टअप सीन देख लीजिए, आप कोई भी फाउंडर को देख लीजिए, हार्डली, बहुत मुश्किल से, रितेश अग्रवाल को छोड़ दीजिए, बहुत मुश्किल से डबल फिगर इक्विटी किसी के पास है, नहीं तो सब बेच बाच के बैठ जाते हैं पहले। लेकिन बायजू और कुछ हद तक रितेश अग्रवाल, इन दोनों ने बहुत अच्छे से गेम को प्लान किया और प्ले किया। इनिशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत समय दिया, एक मार्केट ट्रैक्शन गेन करी, उसके बाद अपने आप को ओपन किया। और बायजू और अनअकैडमी का अगर मैं फिगर्स में भी कंपैरिजन करूं, अनअकैडमी की वैल्यूएशन क्या है, 400-500 मिलियन है अभी, बायजू पहुंच गया है 11 बिलियन पे। कोई कंपैरिजन नहीं है। अनअकैडमी का हमेशा फोकस रहा है कंपटीशन और जो आईएएस, और अभी तो बैंक पीओ को ही फोकस करते हैं 60%, ठीक है, साथ साथ थोड़ा बहुत लेके आ रहे हैं स्कूल वाला कंटेंट, लेकिन अभी भी फोकस कंपटीशन एग्जाम्स ही है। बायजू का स्टार्टिंग से फोकस स्कूल रहा है, आफ्टर स्कूल रहा है, आफ्टर स्कूल ट्यूशन रहा। तो एंटायरली डिफरेंट मॉडल है, दोनों ने अलग तरीके से गेम को प्ले किया है, और दोनों सस्टेन कर रहे हैं। इंडिया में वैसे भी मोनोपोली पॉसिबल नहीं है, चाइना जैसी मार्केट्स में मोनोपोली होती है। इंडिया डाइवर्स है, लैंग्वेज में, सोच में, हर तरीके से। मोनोपोली वैसे भी पॉसिबल नहीं। Okay. Mr. Harit, please. बताइए। Yes. Uh, just I joined late, so can I know what was the topic right now? Like, Yeah, basically current. it's an online offline education comparison only. So Mr. Okay. Ravi was talking about Unacademy and little bit Okay. Byju's, or Neeraj was talking about Byju's. So yeah, Okay. what's your take? Yes. Okay, fine. So, online studying, like when I go to my days, there was no internet wave at that time. So it started all recently, right? So during my times, even I was pretty much interested with about this IIT, getting into the IIT. So the thing is, like at that time, I was not aware like what is the proper coaching from where we can get. But
I used to visit Chennai while going to my native place in Kerala. So हमारी ट्रेन चेन्नई से जाती थी हमेशा. So it used to halt over there at Chennai, and from there we used to change the train. तो मैं वहाँ पे एक ब्रिलियंस का एड मुझे काफी दिखता था. IIT JEE. सो ब्रिलियंस ट्यूटोरियल्स करके बहुत फेमस था उस वक्त. So they used to give home coaching, like correspondence coaching. So they will give you the study material and everything, and you can learn from that study materials, or we can uh, prepare for the exams. So kahin na kahin pe I feel this is analogous to what these institutes are trying to do now. जो लोग who can't attend or who can't travel from their hometown to their institute coaching classes, तो उनको online coaching provide कर देना. So this is what they are trying to do, I feel so. And yes, definitely it is analogous. Or Brilliance ka they had a very good tutorship, and they went for a pretty good period of time, but later on I think they have become bankrupt now. I'm not sure what is the current scenario over there. So Brilliance tutorials with the बाकी के भी इतने सारे competitors आ गए कि like the quote was famous altogether, Akash, then all these type of institutes. So they just phased out from that business. Brilliant tutorials. So online and offline, anyway, जब हम लोग competitive studies की बात करेंगे, so definitely this will be helpful for the students जो really they are interested and have dreams to come across, like they have very good dreams to get across through MBBS or IAS or IPS or बैंक PO. उनके लिए अच्छा चीज रहेगा फ्यूचर में. बट प्रैक्टिकली अगर कुछ करना है, फॉर एग्जांपल इफ इंजीनियरिंग या ऐसे कोई स्टडीज जो होती है जो प्रोफेशनल डिग्री है, आई डोंट थिंक सो कि लॉन्गर रन में भी ये कंप्लीटली ऑनलाइन हो सकता है कभी. ये इट इज नॉट पॉसिबल. लाइक जो कॉलेज या प्रोफेशनल डिग्रीज है उसको तो प्रैक्टिकली फिजिकल एजुकेशन ही करना होगा वहां पे जाके. आई वाज जस्ट इमेजिनिंग लाइक हाउ कम एन ऑनलाइन करते करते MBBS की डिग्री ना ऑनलाइन दे दे लोग. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट देन. डॉक्टर्स ऐसे आएंगे कि जिन्होंने ऑनलाइन सर्जरी की होगी बस. करेक्ट. यस रवि जी, आप कंटिन्यू. कुछ यू वांट टू ऐड अ बिट? हाँ. Yes. Audible? Yes. So that was one point. Ki, with online at after secondary or maybe in competitive examination preparations, we can have a iconic preparations. We can get the iconic lecture or maybe guidance in the preparations part, which will enhance the capacity to perform better for the students. They have, of course, they can have a enhancement in terms of performance when anybody who get the iconic lecture or iconic participation. So of course the kind of motivations they usher on us is great. And the name which I was talking about regarding this is Randy Zuckerberg. So it was Randy. Atul sir was right. Okay. Now the second point which I want to iterate with online education. Okay. So which Hari also has taken that point. See, in this online, the degree which we expect to do, let's say regular educations with degree and goes on, there the offline still will play a major role. But whereas few certifications course, examination preparations course, that will have a major chunk in online education. To substitute this, actually, see, in right now, it is the scenario in physical education in terms of schooling, secondary schooling, and then up to colleges, coaching and schooling goes tete on tete. There are few teachers who do take the classes in the colleges also, and the same teachers will be taking the classes in their own
institute or coaching setups in the evening or maybe by the times with for the same students. And it is moreover observed the people who involved in this kind of setups, they will put less energy in college or in school, and they will have more energy or more participation of the thought or the process of education in their personal coaching or institute. So this will also get somehow materialized with online and offline segments. So students will have an influence of there this online educations will have an influence, so that the teacher, which is other part of this education systems, they will have to improve their ability to be in the game or be in the education systems. So this was my second point. Okay. Hope I am making some valuable input to the people. Okay. Mr. M. Yeah, Vishal. Sorry. Yeah, Vishal. I'm Mr. Sachdeva here, Manpreet Sachdev. Sorry, I just Okay, changed okay. the name. I'll change it. I know. Yeah. Okay. Anyway, yeah, this is a very good topic. I can also just throw some lights, whatever I can do now. First is that, yeah, so offline and online education, what we're discussing today. So basically, we are from a country, India, and in India, we always believe, or all the Indians, they believe that education is very important than anything else. They don't believe in sports activities. They don't believe in inventing like inventors or anything. They just want education. We've been grilled from our own system right from starting when you're born that school jao, pado, 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 that's it. Nobody is told to become like, a different person. So that this is the basic things of our Indian culture and Indian academy or whatever. Number one. Number two now, coming back to offline. Basically, offline education is always recommended and it's important because with offline education is your basic which starts, and your online education is only for add-ons, like you're doing extra courses, or people who don't have time, or people who are in distant learning. That will always be better only for offline education. And offline education, you cannot do your basic education which you start, like you can't do any activities with your online education. Also, if you see now, because of this new change or new shift, there is a lot of online education happening, but this is just temporary. It will definitely die down and fade, when things go better in the next maybe 6 months or 1 year. And second most important point is that we find that your touch, your feel, your contact, eye contact between your peers and all, everything is missing in online classes. So basically offline is always recommended better, and I feel that it will be a long run for offline classes. And as far as other countries are concerned, yes, they are doing online classes, but this has started off late only. Otherwise, people never used to bother to do online classes. As of today, also, if you see the small kids who are below 5th grade, the government has cancelled all schools for them, online schools, because of various reasons, like they can't look at the screen for a long time, or they are too small and all that. So my take would be always I would stick to offline classes, maybe even till college, because college also you can't do in online. Yeah, so basically your offline will be always better. Online you can take after your college for higher education degrees, because by then you're mature, you have the basics with you, and you can perform better that way. So I feel that we should always stick to offline classes as much as possible. And yeah, also I heard few speakers talking about Byju's and about the other brilliant tutorials. Yeah, that's a very good comparison, and they are also they're just very good for students who are
trying for better. I mean, it's a parallel education. You already have your basic CBSE, ICSE board. They give you the basic knowledge. The other tutorials are basically just extension, and you just want that extra learning, and you want to excel more, and or probably you want to beat the competition for that. And another thing what I find is that these classes, basically whatever are there, the education system is going to be changing, and where people are going to be just focusing on more and more like personalized education system, education classes, where they're going to make sure that the kids or the students, they can get their particular field of education very much personalized. Like, right now you can choose your subjects only after a certain college grades, but it would also be better if they can earlier itself prepare the kids for those grades. And that, of course, that is offline only, where they can prepare them, and it's going to be very personalized. And another thing I'm just noticing is that earlier we never have seen homeschooling. So this homeschooling also can pick up, because if people get addicted to the online classes, they will probably do a lot of multitasking, and many of the parents will save a lot of time transportation, and the kids getting more time to for extra activities, or also spend some more time with their parents or with their relatives at home while studying. And so this concept where home tutorials will pick up slowly in India, where you'll find people getting prepared at home and learning at home. That is again due to online classes only. Otherwise, this was not at all possible or not at all visible around 10 years back. And yeah, there are a lot of internet activities are happening. And I feel that our education system is becoming better day by day. It was not how it was earlier, and kids are also becoming smarter. They are whatever we learned maybe on 7th grade, they're learning in the 5th grade. And I'm sure it's going to be a good future in education both ways for India. Yeah, thank you very much. Yeah. Yes, Neeraj. या विशाल, थोड़ा सा होम स्कूलिंग के ऊपर बोलना चाहूंगा। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट यूएस में काफी पॉपुलर है, तो लोगों को सुनने में काफी अच्छा लगता है इंडिया में भी, कि क्यों ना हम भी ऐसा कर लें। और कहीं ना कहीं यूएस के रीजंस हैं उसके पीछे। एक तो यूएस में जो पॉपुलेशन है, कुछ सिटीज में डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन बाहर थोड़ा निकलोगे तो स्कैटर्ड है। उसके बाद इंडिया को बहुत बदनाम किया जाता है कि मतलब सोसाइटी में बहुत क्लासेस हैं, बहुत आपस में डिफरेंसेस हैं, ऊंच नीच है, ये है। लेकिन यूएस की सोसाइटी बहुत कहीं इंडिया से ज्यादा मुझे लगता है वहां पे क्लासेस हैं। और अभी तो आप सब समझ ही रहे हैं जो भी चल रहा है, ब्लैक लाइव मैटर्स और व्हाइट लाइव मैटर्स। तो एक टर्म है यूएस के लिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है, बहुत पॉपुलर है, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, बॉस्टन ब्राह्मण्स। ठीक है, तो बॉस्टन ब्राह्मण्स वो लोग हैं जो कि इनिशियली बॉस्टन के अराउंड आके सेटल हुए, और जो कि अपने आप को बहुत सुपर क्लास, प्योर ब्लड और वो सब जो स्टोरीज होती हैं गोरों की, वो अपने आप को मानते हैं। स्टार्टिंग से ही बहुत रिच रहे हैं वो। मतलब जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं यूएस में, आज भी बोला जाता है कि उनपे मैक्सिमम पे बॉस्टन ब्राह्मण्स का ही कब्जा है। और वो सब उन्होंने ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को शुरू किया कि हमको अपने बच्चों को उस सोसाइटी में मिक्स नहीं करना है जहाँ पे एक अफ्रीकन का बच्चा मेरे बच्चे के साथ मिक्सअप हो रहा है, और सिक्योरिटी का इशू है, ये है वो है। वहां से ये होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में लॉ होम स्कूलिंग अलाउ नहीं करता है। अगर आप कुछ भी हैं, आप कितनी ही ऊंचे परिवार से, कितनी ही रिच फैमिली से हैं, आप लीगली 5 से 14 साल के बच्चे को, या 6 से 14 जो भी एक है उसमें एज,
बच्चे को आप घर पे नहीं बिठा सकते। आपको बेशक पड़ोस के किसी स्कूल में भेजना पड़े, बेशक कहीं पे आपको उसका नाम लिखवाना पड़ेगा, सरकारी स्कूल में लिखवाना पड़े जाए, क्योंकि इंडिया में आरटी जो है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी, राइट टू एजुकेशन, उसमें ये बहुत अच्छे से अंडरलाइंड है कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना जरूरी है और पेरेंट्स उसके लिए बाध्य हैं, अगर नहीं भेजेंगे तो जेल हो जाएगी। बहुत सारे इंडिया में एनजीओज के अलावा इंडिविजुअल्स स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं इस चीज के लिए कि हमारे को होम स्कूलिंग का हक मिले, लेकिन इंडिया में नियर फ्यूचर में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना ही पड़ेगा, आपके भले ही ऑनलाइन ऑफलाइन जो कुछ हो जाए, लेकिन आप होम स्कूलिंग नहीं कर सकते। Yeah, sorry, just one small clarification in homeschooling. हमारे यहाँ पे एक एकेडमी है जो स्पोर्ट्स सिखाती है, उनके बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं. So of course, होम स्कूलिंग मतलब they have to be linked with either one college or like Indira Gandhi Open University ऐसे. But definitely home schooling popular हो रहा है, but it is linked with the college or with the board, like you have to be either ICSE or CBSE. So as you say, I think you're right कि as the rule says that बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, but I don't know how they manage this homeschooling where the kids don't go to school every day. They have to just give the exam by the end of the year, and they are doing sports training every day, every week, every month. This is just an input what I'm giving. Thank you. इंडिया में हर चीज का बाईपास मिल जाता है। 11th-12th में जो भी साइंस बैकग्राउंड से लोग हैं वो जानते होंगे, मोर देन 50% लोग स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ स्कूल में नाम लिखा होता है और लास्ट में जाके एग्जाम देते हैं, जो कि आईआईटी या कहीं पे मेडिकल की कोचिंग ले रहे होते हैं। हर चीज का बाईपास है, बहुत से लोग करते हैं ये 11th-12th में स्पेसिफिकली। Yeah, but Even- according to you, Okay. that means homeschool जो है, is it like totally ban or I mean, I'm still not clear. Please. Yeah, explain. legally it's banned. You can't homeschool. आपको स्कूल Okay. में से लिंक रहना ही पड़ेगा, और अगर प्रॉपर लॉ की डेफिनेशन से जाएं तो बच्चे को स्कूल भेजना ही पड़ेगा एटलीस्ट 14 इयर्स की एज तक। Yeah, so मतलब 10वीं जमात तक. 14 इयर्स का उसका जमात का नहीं है, वो एज है। 14 इयर्स किसी के लिए 5वीं भी हो सकती है, 7वीं भी हो सकती है। गवर्नमेंट depends ने on, एज एज का क्राइटेरिया रखा है। Okay, this is news to me. It's good input. Okay. Ravi ji, Yes, आपको so you want I to will add add this? one point on this one, homeschooling. So what Neeraj is saying is absolutely right. We cannot have homeschooling as exclusive in India right now. Okay, and there are a lot of cases altogether every year. That case is to come to many courts in states and also in Supreme Courts to get it granted, but it is not happened. One. Second, there is a provision in education systems like few special academy or few special schooling systems who have different approach like sports. I will specifically tell in this way. If you know NDA, National Defense Academy, and IMA, all these students, they are enrolled to JNU. All these students are enrolled in JNU, but they never go to JNU. But their certifications, their degree certifications come from JNU. But all this scheduling, everything happens in Pune, and maybe in IMA it happens in Dehradun. So they never go to the university, but still their degree is from JNU. So these provisions are there. There are lot of sports academy in Delhi and all over India who has the permissions. They will be authorized by some of the institute to produce the attendance systems in that way. They had to give particular documentations to that particular authorizations, and then on the basis of that the issue they will participate directly in the examinations, and then the result, on the basis of result, they will be awarded with the degree or certificate, whatever the courses they are applied for. So this is there, but I think Ravi ji आप ठीक बता रहे हैं. Ravi आप ठीक बता रहे हैं. What is happening is that I know some sports people like who are enrolling like one in of the school is there in Delhi itself, which is run by Birendra Sehwag.
It is completely हाँ. sports academy school where sports attendance is being marked as a regular attendance for the college. That school is affiliated to CBSE, but they have that is criterion. Students need to be present in terms of sports, and that is what they need to appear in the examination. Yeah, but ये जो आप बता रहे हैं, that is very correct, but this is only for the people or the children who are very good in sports. ये नहीं कि आपका बच्चा sports ऐसे ही नाम के लिए कर रहा है, neither is educated or neither is getting us to the sports experience, because whatever these universities are there or these colleges are there who are doing sports, they make sure that the child is getting prepared for sports up to a certain degree, maybe at a state level or a national level, but usko wo level to at least aana chahiye, otherwise doesn't No, make any sense to just there educate. is two things which you talk about. There's two things. One, every schools, universities do have a sports quota entry itself, where they have to attend the classes regularly and they play in the sports quota, like they play for the colleges and in schools, universities. That is different thing. I'm talking about a child, let's say a child from 5th class only enrolled to that academy itself, and he will have a schooling not in a full-fledged way as of regular childs do. He will have a schooling, he will have a more time with the sports training and everything. Okay, and he can have informations about the educations from as we do in coachings or maybe from home tutors, and then he will allowed to appear in the examination. Let's say a 9th class or 6th class student who enrolled himself in a sports academy, he can have a very well sports academy enrollment for daytime. He has to present there, and that attendance will be counted as a present in the normal academic session of that particular schools or the university which he is affiliated to. And this academy will submit the report to that affiliated universities or college or schools, and on the basis of that this candidate or child is allowed to participate in the final examination. Yeah, you're right, Ravi, आप ठीक बता रहे हैं. इसमें what you say, it makes sense, because basically but then he has to also study parallelly. ये नहीं कि वो sports करता रहेगा, studies नहीं हुआ, exam में 0 मिलेगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है. Right, so that is there. Yes, because I know some people who are there's a similar college or in Bangalore. It's called Jain University. You just register yourself, and it's very clear from day one that you are in the sports quota, and then you are just given go to the day. I mean, attendance is your wish. Whenever you want to go, you can go. If you don't want to go, you don't go. But you have to prepare the exams, and you have to get your minimum percentage, whatever, 40% or whatever, and then they promote you to the next grade or next level or whatever that is. Yeah. yes. इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा विशाल जी. मैं थोड़ा सा ओके, लेट मी टेल यू. मैं हरियाणा से हूँ. हरियाणा में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है. ठीक है. हर एक छोटे से छोटे कस्बे में, इवन गांव में भी आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स मिल जाएंगे, जिसको साई सेंटर्स बोला जाता है. ठीक है. और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तो कई होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए होते हैं. मेनली लोगों का इंटरेस्ट रेसलिंग और बॉक्सिंग वगैरह में रहता है, तो उनके तो बहुत होते हैं. तो वहां पे बच्चे जो आते हैं वो बहुत छोटी उम्र से आ जाते हैं, साई सेंटर्स में ही रहते हैं, वहीं पे उनका पूरा ट्रेनिंग वगैरह चलता है. लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी स्कूल से लिंक होते हैं, उनको एग्जाम देने पड़ते हैं, एकेडमिकली उनको पास करना पड़ता है, और तभी वो आगे बढ़ते हैं, मतलब क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं. ये बहुत कॉमन कल्चर है, ये आज की बात नहीं है. आपने देखा होगा आपके स्कूल में कोई बच्चा होगा जो सिंगिंग में अच्छा है, या एनुअल फेस्ट आने वाला है तो वो 3 महीने से सिर्फ डांस की प्रैक्टिस कर रहा है. ये बाईपासिंग का कल्चर इंडिया में है, और ये कहीं लीगली मेंशन नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं ये चीजें, ये लेकिन होती हैं, पीछे के दरवाजे से होती हैं. सपोर्ट किया जाता है कि अच्छा ये स्पोर्ट्स में अच्छा, इसको खेलने दो, ये आगे सिर्फ पेपर दे लेगा. अच्छा ये गाने में अच्छा, इसको गाने दो, ये एनुअल फंक्शन में हमारे को रिप्रेजेंट करने वाला है, ये किसी कंपटीशन में जाने वाला है, इसको करने दो वो चीज. लेकिन ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है, पीछे के दरवाजे से होने वाली चीजें हैं. ये आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से हो रही है. रही बात JNU की, जो कि रवि ने बोली NDA को डिग्री देती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में
जो 3 साल का कोर्स होता है, 12th के बाद वहाँ पे आदमी अंदर आता है सारे एग्जाम एसएसबी वगैरह क्लियर करके। तो पैरेलली जब ऑफिसर बनाया जा रहा होता है तो उसको ग्रेजुएशन की भी डिग्री देनी होती है। सरकार का ये है कि हाँ मेरा ऑफिसर ग्रेजुएट तो है, पढ़ा लिखा है। 3 साल का कोर्स होता है, साथ में जेएनयू से उनका एफिलिएशन है, एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। और जेएनयू से पूरे इंडिया में कोई कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है। जैसे जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उससे भी कोई कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है। ओनली इन कैंपस स्टूडेंट्स को ही डिग्री मिलती है। सेम कॉन्सेप्ट जेएनयू का है। जेएनयू से सिर्फ आउटसाइड जेएनयू जो एक इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। उनके पेपर, उनके सारे एग्जामिनेशन, उनके सारा डिग्री वगैरह सब जेएनयू से रहता है। और ये सिस्टम पुराने टाइम से चला आ रहा है। सरकार ने क्यों यहाँ से बनाया, पुणे की किसी यूनिवर्सिटी से नहीं बनाया, वो अपने आप में एक क्वेश्चन वाली चीज है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस वजह से है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि सरकार को लगा कि देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे ऑफिसर्स के पास सबसे अच्छी डिग्री होनी चाहिए और ऑफिसर्स तो बनाने ही है। इस पे पॉलिटिकल थोड़ा एक एंगल है नीरज। पॉलिटिकल एंगल ये है कि जेएनयू को बनाया गया था पॉलिटिक्स के लिए ही। इंदिरा गांधी और उसके पहले भी जब बनाया गया था ना, तो आइडिया ये था कि जेएनयू में आप आज भी देखोगे, जो भी लोग इंडिया में न्यूज वॉच करते जानते हैं कि चाहे वो जो भी आजकल टेररिस्ट वाली एक्टिविटी है तो जेएनयू में होता है। तो जेएनयू को बनाया गया था इसलिए ताकि एक लेफ्ट विंग का कम्युनिस्ट थिंक टैंक जेएनयू बने। तो बहुत सारे जो प्रोफेसर है, वाइस चांसलर, मैं जेएनयू में खुद भी गया था, एडमिशन लिया हुआ, मैं जेएनयू को छोड़ दिया था 6-8 महीने बाद। तो जेएनयू के जो वाइस चांसलर जो होते हैं या प्रोफेसर जो होते थे, अब नहीं बोलूंगा, लास्ट कुछ साल में चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, बट जेएनयू के जो वाइस चांसलर वाईके अलग था। जब मैं गया था तो वाईके अलग वाइस चांसलर था। बाद में वो प्लानिंग कमीशन का भी जो नंबर 2 होता है वो भी था। तो जेएनयू वाज मेनली क्रिएटेड टू क्रिएट अ इंटेलेक्चुअल एंड थिंक टैंक एंड सपोर्ट ग्रुप फॉर लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजीज। और बाकी यूएस में भी, बाकी दुनिया में भी, यूके में भी, यूरोप में भी, हर जगह पे यूनिवर्सिटीज नॉर्मली थोड़े से स्पेशली अगर आर्ट्स की जो पढ़ाई होती है, लिबरल आर्ट्स की, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, तो नॉर्मली पढ़ाई होती है ताकि उनको प्रोफेसर्स बना जाए, इंटेलेक्चुअल बनाया जाए, बट काम के लायक कोई स्किल नहीं पढ़ाई जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि जेएनयू में काम वाली चीजें भी हैं। वहाँ पे एमसीए की भी पढ़ाई होती है, वहाँ पे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है जिसके की निर्मला सीतारमन वहीं से पढ़ी है, जो हमारी फॉरेन ये है कॉमर्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जेएनयू से एक और बहुत बड़े आदमी है, क्या नाम है अपने जो फॉरेन मिनिस्टर अभी जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, जयशंकर प्रसाद। हाँ, जयशंकर प्रसाद। तो जेएनयू के काफी अच्छे प्रोडक्ट्स भी हुए हैं क्योंकि एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत जबरदस्त है, 7 फ्लोर का है। वहाँ का कैंपस बहुत ही सुंदर है। मैं उसमें अपने दोस्तों को, जो अपने स्थानीय स्कूल के दोस्तों, उनको बोलता हूँ कि पेड वेकेशन है जेएनयू। मतलब कि आप 30 साल 40 साल तक आप क्या कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हो जेएनयू में, पीएचडी तक पढ़ाई करते हैं लोग। मतलब कि मैंने एडमिशन लिया था बैचलर से, बीए इन स्पेनिश में मैं बैचलर और पीएचडी करता। लेकिन जेएनयू में ज्यादातर जो पढ़ाई करते हैं आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली मतलब कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये सारे जो रशियन है, तो मेनली पढ़ा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे खाना सस्ता मिलता है, ऑलमोस्ट फ्री, हॉस्टल ऑलमोस्ट फ्री, बहुत सस्ता, मतलब कि कुछ रुपयों में मिलता है। और लोग नॉर्मली वहाँ जाते हैं ताकि वो लोग तैयारी कर पाए। सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होते हैं, नहीं होता तो बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, नहीं हो तो कुछ, और कुछ लोग पास भी हो काफी। इसीलिए जैसे जयशंकर या क्या नाम है, निर्मला सीतारमन, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी, और ज्यादातर लोग मीडिया में बहुत लोग चले गए हैं। मेरे बहुत सारे जो साथ में जो थे, जिनको कि मैं अपने आरएसएस के शाखा में बुलाता था, आते थे, तो वो सारे लोग मीडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स में देवेश कुमार है मेरे सीनियर, एबीवीपी में थे। मेरे एक और बहुत क्लोज थे सुमन झा, वो अभी बहुत टॉप के इंडिया बिजनेस वर्ल्ड के एडिटर बन गए हैं, जो बिजनेस वर्ल्ड जो स्टार्टअप कवर करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का वहाँ स्टैंडर्ड अच्छा है, रिसर्च है, स्कॉलरशिप है, सब कुछ है, बट एजेंडा अलग था। जब खुला था जेएनयू, तो एजेंडा था कि लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट थिंक टैंक बनाने की। तो बहुत सारे लोग पर्सनल मेरिट पे, ज्यादातर लोग को एग्जाम क्लियर हो गया तो चले गए, सिविल सर्विसेज में चले गए, बैंकिंग में चले गए, जहाँ चले गए। कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं, जैसे अभी
थोड़ा पॉलिटिक्स पे आता हूँ कि अभी रिसेंटली जो आप लोगों ने सुना होगा, जो दिल्ली में चल रहा था आंदोलन, जो जाम चल रहा था, तो उसमें भी जेएनयू के लोगों का काफी उसमें इन्वॉल्व था। वो अभी जो एक बंदी बेल पे छुट्टी है, क्या एक बंदी है जो अभी प्रेग्नेंट भी है, वो भी जेएनयू की है। जेएनयू को जो स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, वो भी एक लड़की, बंगाली लड़की। मेनली जेएनयू पॉलिटिक्स का अड्डा है, पढ़ाई हार्डली होता है। तो आपने जो पूछा ना कि क्यों एनडीए का डिग्री जेएनयू से मिलता था, क्योंकि उस जमाने में इंडियन गवर्नमेंट ही जो थी वो जेएनयू टाइप थी, तो लेफ्टिस्ट में नहीं थे। तो उन लोगों ने कहा कि चलो अपना नेशनल डिफेंस को भी हम लोग जेएनयू के उसके भी डिग्री हम लोग जेएनयू से एफिलिएट कर देते हैं। आज का कोई अगर होता, आज यही चीज होता, तो हो सकता है इंडिया की डिग्री किसी आईआईटी से दिला देते, किसी आईएम से दिला देते, या खुद का उनका अपना एक स्टैट्यूटरी डाल देते कि हाँ जी एनडीए खुद में भी बैचलर्स की डिग्री दे सकता है। बट उसके पीछे की पॉलिटिक्स जानना बहुत जरूरी है। इसके चलते जो माहौल जो खराब हुआ है ना, वो उसमें जेएनयू का बहुत बड़ा रोल है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ज्यादा बोल दिया। सर मैं इसमें बस ऐड करना चाहता हूँ, जो भी सर पॉलिटिकल विंग हो या फिर जो भी चीज हो, बट आई थिंक जेएनयू जो इंस्टीट्यूशन है सर, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बिकॉज अभी तक मैंने जितने लोगों को देखा है या फिर जितने लोगों के बारे में सुना, अभी तक जेएनयू से कोई खराब बंदा या फिर कोई मतलब ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज ही आपको देखने को मिलती है, या फिर आईएएस हो या फिर अभिजीत बनर्जी जैसे नोबेल प्राइज विनर आप अगर बात करो तो वो भी जेएनयू के प्रोडक्ट से। बाद में वो भी जो भी चीजें हो, लेफ्ट विंग का जरूर हो सकता है, बट आई थिंक जी जो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है मटेरियल स्टडी, आप जो ललन टॉप के जो वो सौरभ द्विवेदी हैं, वो भी जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। तो जैसे कि इंडिया में आईआईएम मैनेजमेंट के लिए आईआईएम है, टेक्नोलॉजी का आईआईटी है, उसी तरह आपको जनरल स्टडीज के लिए या फिर जो पॉलिटिक्स थिंक टैंक जो भी चीजें हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल जो स्टडी के लिए, आई थिंक कि जेएनयू इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। जो भी चीज I completely agree with you कि इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम जेएनयू के साथ क्या है ना, कि एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं है। क्या है कि दुनिया में कितने सारे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है, कितने सारे सोशल साइंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो जेएनयू के लोग ज्यादातर पॉलिटिक्स में जाते हैं या मीडिया में जाते हैं, और मीडिया में बहुत लोग जाते हैं क्योंकि उनका किसी सब्जेक्ट में बहुत डीप नॉलेज है, वो सब ठीक है। बट ज्यादातर लोग जो मीडिया में है वो लोग हैं जिनको कोई नौकरी नहीं मिली। एग्जाम, मैं खुद अपने दोस्तों को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लासमेट है जेएनयू से, आज भी मेरा क्लोज रिलेशनशिप है, उनको नौकरी नहीं मिली, दे कुड नॉट क्लियर द एग्जाम एंड दैट्स व्हाई दे वेंट टू मीडिया। कि कोई इकोनॉमिक टाइम्स में चला गया, कोई बिजनेस स्टैंडर्ड में चला गया, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में चला गया, कोई ललन टॉप में चला गया। तो सारे मीडिया हाउस में आप देखोगे जेएनयू के लोग भरे पड़े हैं। लेकिन क्यों भरे पड़े? इसलिए नहीं क्योंकि उनको मीडिया में इंटरेस्ट था। आईआईएमसी एक अच्छी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जेएनयू के पीछे में ही है, तो मीडिया के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन जेएनयू के वो वाले लोग हैं, हम लोग जानते हैं, जिनको की एग्जाम फेल लोग हैं, जो कि जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो उनका है कि चलो हमको अब पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या करना है, तो चलो मीडिया में जाके कमेंट्री करते हैं। मेरिट वाले मीडिया वाले कम लोग हैं, जिनको कि मान ली किसी को इकोनॉमिक्स में या किसी भी टॉपिक पे उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। जेएनयू के ज्यादातर लोग एग्जाम फेल लोग हैं, मतलब कि मेरा ये कहना था। मैं एक चीज बोलूंगा जेएनयू के बारे में। जेएनयू में आप एग्जाम फेल हो, स्कोरिंग आपकी कैसी रही हो, वो एक अलग आईना है देखने का, लेकिन जेएनयू आपको इंटेलेक्चुअल जरूर बना देती है। मेरा खुद का भांजा है, he was really brilliant in academics। 12th में कोई 99% उसके मार्क्स आए। देन उसने सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लिया, मैथमेटिक्स ऑनर्स किया वहां से, और उसके बाद मेरी उससे रेगुलर बात होती रहती है। तो मैंने उससे पूछा क्या करना है, तो उसने कहा कि मैं जेएनयू में जाऊंगा, एंड ही इज डूइंग समथिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई कोर्स कर रहा है वहां पे, एमए या जो भी बोलते हैं, स्कूल इन इंटरनेशनल स्टडीज बोलते हैं, एसआईएस। हाँ तो वहां पे उसका एक्सपोजर की मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। जो हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, उनका बेटा है, वो वहां का स्टूडेंट है जेएनयू का पुराना, उनका बेटा भी। और वो कोई मतलब काइंड ऑफ मैं कहूंगा क्लब चलाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अराउंड, जहाँ पे वो बैठ के बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में बात करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के बारे में, इवन जयशंकर जी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो उस ग्रुप का पार्ट है, जयशंकर जी के बेटे के साथ वो बहुत इन्वॉल्व है
इंटरनेशनल रिलेशंस पे जितनी भी बातें होती हैं, खासकर अभी आजकल जो चल रहा है, इन पे वो काइंड ऑफ थिंक टैंक का काम करते हैं, और उनके इनपुट्स इवन जयशंकर जी तक जाते हैं। तो जेएनयू आपको एक्सपोजर बहुत बड़ा देता है। बाकी अंदर जो चलता है पॉलिटिक्स वो सेपरेट है, मार्क्स कितने आते हैं वो सेपरेट है, लेकिन आपको उस पे एक पॉइंट है नीरज कि इंटेलेक्चुअल तो बना देता है, एग्री विद दैट कि हर टॉपिक पे ओपिनियन है। आज मैं भी जेएनयू का इन्फ्लुएंस है कि मुझे भी हर टॉपिक पे बोलना अच्छा लगता है, लेकिन रियल इंटेलेक्चुअल उसको माना जाता है पूरी दुनिया में जिन लोगों ने कुछ पेपर पब्लिश किया, किसी टॉपिक पे रिसर्च पब्लिश किया, जिसको कि दुनिया रेफर करती है। और मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे पीएचडीज और मतलब कि बाहर में भी, यूएस में भी है। तो किसी भी इंटेलेक्चुअल का मेजरमेंट ये नहीं आता कि आप कितना अच्छा भाषण दे सकते हैं या धरना जुलूस दे सकते हैं। मेजर क्या आता है कि आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी आई है, और केवल पब्लिकेशन छापना इनफ नहीं है, उसकी रेफरेंसेस कितने लोगों ने रेफर किया है। पीयर रेफरेंसेस हुई नहीं, मैंने कोई पेपर छाप दिया, मेरा दोस्त था पब्लिशर था, छाप दिया, लेकिन मेरे जो रिसर्च पेपर को कितने सारे दूसरे रिसर्चर्स ने रेफर किया, उसी के हिसाब से रिसर्च पब्लिकेशंस के रिसर्चर्स की रेटिंग होती है। तो वहां पे जेएनयू का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, जेएनयू का जान पहचान कंट्रीब्यूशन है कि अब जयशंकर प्रसाद फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनके बेटे के भी सारे दोस्त का एक्सेस होगा, मेरा भी एक्सेस इसीलिए क्योंकि मेरा जेएनयू में मेरा भी दोस्त है। लेकिन उनका थिंक टैंक, हर आदमी थिंक टैंक अपने आप को मानता है, बट उनके जर्नल्स में पब्लिकेशन है कि नहीं, इंटरनेशनल जर्नल्स में। जैसे आज के मैनेजमेंट के वर्ल्ड में कैसे माना जाता है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिकेशन आ गया तो आप रियली कोई पहुंची हुई चीज हो। आपका और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है वर्ल्ड में कि आप एमआईटी में आ गया, एमआईटी स्लोन रिव्यू में, या एमआईटी के टेक्निकल में आ गए, तो किसी टेक्निकल पब्लिकेशन, चाहे वो साइंटिफिक अमेरिकन हो या जियोग्राफिकल हिमालयन नेचर मैगजीन हो, अलग अलग पब्लिकेशंस है, वहां पे उनका पब्लिकेशंस नहीं के बराबर है। जेएनयू का रेफरेंसिबिलिटी बहुत खराब है, वो मैं बोलना चाह रहा था कि हाँ, ज्ञान देने के लिए तो हम लोग इस तरह जीडीए 10 में भी सब लोग को ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारी पब्लिकेशंस का है, वो मैं बोलना चाहता हूँ, वो नहीं है जेएनयू की। Okay, Vishal. Yeah, With please. your permissions, I will bring the discussion on topic. We are going a little bit like diverging from the topic. So I will add one more point with the topic itself. Okay. So my third point is the online educations have an edge over offline educations, but see there are few segment of educations how the online education is going to take how they are going to anticipate that segment in terms of educating. And these segments are like: one, entertainment; second, sports; third, doctor, medical; fourth, practical lab education. So this is one questions to all the forum, like how we can take this through online education, where physicality is much needed, much required. ठीक है, anyway, let me add a bit कि I think जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि offline is never going to be replaced by online. So what I think can happen is kind of a co-working space concept. कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं, लैब्स हैं, उनके they might go on a lease kind of everyday lease, or I don't know, some kind of mass lease, that okay, labs are there, this there, I mean infrastructure is there, so some classes can happen here or some labs can happen here, and the other things can be taken online. So like even जैसे MBBS का ही बात कर रहे थे हम लोग, तो initial things, lectures and things can be done online, like अभी हो भी रहा होगा, इनफैक्ट अभी कोविड के टाइम पे, I don't know, maybe I haven't spoken to any medical student, but it will be good to talk to some of them. I guess they might be doing a lot of things in online mode, but obviously but anyway, I think medical वाले तो I think जा भी रहे होंगे ऑफिस, शायद उनको तो अलाउड है एज एन एक्सेप्शन, तो उनका तो प्रैक्टिकलिटी नहीं खत्म होगा, और आई थिंक जनरली प्रैक्टिकलिटी खत्म नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे लाइक एमबीए है, जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है व्हेन आई विजिटेड बी स्कूल्स, कि बी स्कूल्स में एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है नहीं। जो लोग हैं, जो भी है, तो दे आर ऑल लाइक स्टेइंग टुगेदर, सो दे कैन स्टे टुगेदर एनीवेयर. There is no like a chemistry lab, physics lab and things like that. So why is that building there anyways? I mean,
या why is an expensive building rather मैं बोल सकता हूँ expensive building क्या है और एक ही building क्यों है building change भी हो सकता है तो कहीं ना कहीं हमारा LWT learning while traveling भी उसी से inspired था कि building के बिना we just go on excursions and do things and brainstorm जो GD भी हो रहा है इनफैक्ट ये ऑनलाइन GD हो रहा है तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट का भी करा दो ये वो घुमाते रहो उसको तो मैं यही बोलूंगा कि आई थिंक सम सेक्टर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड फुल्ली सो इट विल बी अ प्रोबेबली I mean, the online offline का ratio जो होगा, it will vary from sector to sector. Some places there may not be any like 10-20% or maybe 5% replacement, whereas some sector can be almost 90% replaced. Like B school for example, let's say मैं बोल सकता हूँ या इनफैक्ट छोटे बच्चों का भी अगर उनका जस्ट एजुकेशन कराना है तो वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है प्लस उनका कुछ गैदरिंग है वीक में एक बार मंथ में एक बार कहीं करा लो सेम पैसे में they can probably get much more than just going to a school every day. So that's my take on this online offline. Anyone else want to add anything? Aman, Saurav, you want to add anything in this? Sorry, I've been quiet for a while. Are you there? Unmute करना होगा Saurav. एक बार क्वेश्चन बताएंगे विशाल क्वेश्चन यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का जो रेशियो है मैंने जैसे बोला कि कुछ सेक्टर में इट कैन गो वेरी मच ऑनलाइन एंड कुछ सेक्टर में इट्स प्रीटी मच इम्पॉसिबल टू गो ऑनलाइन लाइक 10% होगा 90-10 होगा लेट्स से और कुछ में 10-90 हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन का हाइब्रिड मॉडल तो आई थिंक मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ऐड लेट्स से बी स्कूल यू हैव डन एमबीए राइट मैं तुमसे पूछ रहा हूं एमबीए जो तुमने किया अगर ऑनलाइन मोड में करते आधा टाइम व्हाट यू सेड आई कंप्लीटली एग्री बट आई थिंक ये एक फैशन है जैसे शादी डिबेटेबल टॉप जो आपने बोला बिल्कुल शादी में उड़ा दो पैसा शादी में आप 10 लाख का 5 स्टार में होता है उससे अच्छा तो यार 10 लाख में क्लियर देखो का फ्रेंचाइजी खुल जाएगा क्लियर देखो यार हनीमून में उड़ेगा वर्ल्ड टूर होगा हाँ मतलब सही में तो डिबेटेबल टॉपिक है एंड आई कंप्लीटली एग्री जो आपने कहा कि बी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं बट आई डोंट हैव मच टू ऐड इसलिए मैं आज शांत हूं चलिए कोई बात नहीं ठीक है सैयद मिस्टर सैयद वांट्स टू ऐड प्लीज बताइए आर यू देयर यस प्लीज Yeah, hi. I think for online, offline, good old days it was okay with offline, but nowadays online is also required. It only complements. It complements. Well, till class 12th, that's schooling is mandatory. That I feel people will make great friends. People will, enjoy their childhood. They will cherish, and they will they can interact with people, strangers. They know how to talk with people. If it has been online for continuous for long, it's like from class 6 or to 10th also, still you cannot fill those gaps because people are young and when they have not been, you need parents to follow up, you need a lot of things to follow up till they finish their 10+2. I think after 10+2 you do your graduation and you can complement well as long as the world asks you, okay, what is your basic qualification. So you need to say that, okay, you have done, unless you are like smart enough like Elon Musk or exceptional where you can just or you want to drop out the college or school. Those people are exceptional, but otherwise if you take the majority, they need education, and professors, great professors are badly required. The professors guide you, they give you the insight, they share the experiences. You might not get even on online, but with flesh and blood, their interaction is completely different. They can influence you, whereas with online you might find the influencing factor or when admiring factor of a professor, all these things will reduce on an online classes. Well, with respect to infrastructure, I think it depends on the colleges, the kind of faculty, and what kind of
environment you want to give to B school people. So I think infrastructure should be also should be classy. You know, we are in a very advanced world. I don't think maybe what I call you can have new methodologies. For example, now the kind of CEOs and management graduates are required with algorithms. They should know algorithms. They should know, you know, when you're talking about AI ML, they should be able to have some practical decisions. If you don't have robotics, or if you don't have some classes where how decisions are changed, you know. So maybe in tomorrow's world, as of now, MBAs don't have the infrastructure. To maybe tomorrow's world will have a different management gurus, you know, where they might show you how the drone, how the analytics works with the drones live in a classroom. You know, you need infrastructure. So suppose you want 20 drones, okay, or some data, you have a data center and you have terabytes of data, let's say, and you want to do analytics, and you are a CIO of a company, and you need all sorts of reports. So how do you do that? So you need infrastructure. So next generations will have a lot of tech infrastructure, and this is my opinion. Well, for schooling, I think you can still you need offline, whereas over a period that can complement, and it's my view. I hope. Yeah, that's end from me. Okay. Yeah. So I'm just giving one alternate thing, and Athu sir can add. जो interaction की बात हुई, I think we have been proposing to educational institution is कि you do online classes and then you do offline excursions, lots of them, ठीक है. Same budget को ना आप distribute कर लो online education और offline excursions में, तो फिर भी आपको building की जरूरत नहीं पड़ेगी. You can just travel and learn. Like train में आप जाओ कोलकाता to मुंबई, 30 घंटे का होता है ट्रेन, आप कराते रहो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन, जैसे ये हम लोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कर रहे हैं. लेट्स से हम लोग इतने 10 लोग ट्रेन में होते हैं, 30 hours of train journey and doing all this activities. So something like that. Yes, Athu sir, बताइए please. तो बिल्कुल आई एग्री विद मच ऑफ व्हाट यू सेड विशाल, एंड आप जो कर रहे हैं, पर सैयद जी ने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दी, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड मच ऑफ द ग्रेट स्टफ ही ऑलरेडी एडेड, बट फ्यू एडिशनल पॉइंट्स वुड बी कि नंबर वन, जो आपने जैसे एक्सकर्जन्स की बात बोली विशाल आपने, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, पहले भी दे चुका हूँ, कि एक शशांक त्रिपाठी करके होते थे, कंसल्टेंट पार्टनर थे एंडरसन में. अभी उन्होंने जागृति भारत रेल यात्रा स्टार्ट की थी. अब काफी सारे लोग हो सकता है फेमिलियर हो, तो पूरे इंडिया की उन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइज की सारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स, और पूरे इंडिया में लगभग डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं, और केवल साइट सीइंग नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं प्लस लोगों से मिल रहे हैं. बाबा आमटे से मिलना है, या और भी कोई बड़े एंटरप्रेन्योर, मान लीजिए कहीं बैंगलोर गुजर रहे हैं, तो चलिए उनको हम नारायण प्रेम मूर्ति से या अजीज प्रेम जी से मिला. तो उस तरह का उनका प्रोग्राम था. तो हमको लगा वो काफी अच्छा प्रोग्राम था, मॉडल, कि एक तो ट्रेन, उन्होंने ट्रेन बुक की हुई थी, तो उस बोगी में केवल जागृति भारत यात्रा के ही लोग जा रहे थे, सारे स्टूडेंट्स. तो वो जो कुछ महीनों की, कुछ वीक्स की जो उनकी साथ की जो बॉन्डिंग बनी, वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सिटी का फिजिकल एजुकेशन का वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जो हम लोग पहले डिस्कस की, कि आप क्लासरूम में प्रोफेसर से और किताब से ज्यादा एक दूसरे से सीखते हो, आपस के ग्रुप डिस्कशन के साथ प्रोजेक्ट्स में वो सीखने को मिलता है. तो वो ट्रेन यात्रा में बहुत लोगों को मिला, और साथ में रास्ते में वो लोग रुक के उस शहर में मान लीजिए रुक रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों से मिल रहे हैं, तो वो भी काफी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. तो इस तरह के मॉडल्स मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. एक लास्ट चीज की एमबीए एजुकेशन के डिफेंस में बोलना चाहूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है क्लासरूम एमबीए एजुकेशन में भी. मुझे 2 साल के IIM अहमदाबाद एमबीए में प्रोफेसर से ज्यादा मुझे अपने क्लासमेट से सीखने को मिला. मेरे क्लासमेट से एक से बढ़ के द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आए हुए थे चुन के, मतलब कोई IIT टॉपर है, कोई NIT टॉपर है, कोई डॉक्टर है, बहुत स्पेशल बैकग्राउंड के थे, या इवन आर्ट्स में भी कोई स्टीफेंस का है, कोई हिंदू का, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लोग थे. तो उन लोगों के साथ जो आपका इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग डिस्कशन, जो क्लास में आपको चाहे क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो या आपस में कॉम्पिटिशन हो, तो थोड़ा उसमें बहुत सीखने को मिलता है. आज वही लोग आज
कोई कंसल्टिंग वर्ल्ड में बहुत टॉप पोजीशन में है, कोई बैंकिंग में है, बट द एंड ऑफ इट कि उस 2 साल का जो आपस का जो आपका जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है। तो वो भी एक क्लासरूम एजुकेशन के डिफेंस बोला जो कि वो इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी वो किया जा सकता है थोड़ा, लेकिन टाइम लगेगा कि 5G आ जाएगा और आपका जूम कॉल इतना अच्छा हो जाएगा, मतलब कि रियल टाइम टाइप का हो जाएगा कि इंटरेक्टिविटी हो रही है, सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, साथ में प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। उस डायरेक्शन में आई थिंक एजुकेशन जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन काफी ज्यादा ऑनलाइन बढ़ जाएगा, बट क्लासरूम एजुकेशन को कंप्लीटली हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रहेगा, क्योंकि पीपल स्टिल लाइक टू मीट पीपल इन पर्सन, पीपल लाइक टू ट्रैवल। एंड आज मैं हार्वर्ड का या MIT का कोई ऑनलाइन कोर्स कर लूँ, वो सेम नहीं है जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर्स के साथ क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे याद है जैसे कि मैंने स्टैनफोर्ड में 3 महीने का कुछ कोर्स किया था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बहुत बड़े ये हैं, तो एंटरप्रेन्योर भी और पढ़ाते हैं। तो वहां पे मैं रास्ते में जा रहा था, तो प्रोफेसर विनोय, बंगाली नाम भूल रहा उनका, तो रास्ते में जा रहा था स्टैनफोर्ड क्लास लेने, तो अचानक मुझे दिख गया, तो मैं दौड़ के पकड़ा और उनसे हाथ मिला, तो रास्ते में उनसे दोस्ती हो गया। और फिर उनके उस क्लास में उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स दिए, एक्चुअली हम लोग को प्रोजेक्ट टीम बना के प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्रोजेक्ट था कि हेल्थ केयर के फील्ड में मेरी जो टीम थी 5-6 लोगों ने हमने मिलकर प्लान बनाया, बाकी जो टीम थी सब लोगों ने अपना, और एट द एंड ऑफ द कोर्स सब लोगों ने अपने अपने प्लान को प्रेजेंट किया, कंपटीशन हुआ, किसी को प्राइज मिला, किसी को नहीं मिला। तो उस तरह का जो मॉडल है आई थिंक दैट विल रिमेन, कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लाइव इंटरेक्शन आपको मॉडल बनाना है। आपको कुछ इवन MBA टाइप के स्टूडेंट्स को भी बिजनेस प्लान बनाने के लिए कभी कभी साथ बैठ के बना सकते हो। मोर इम्पोर्टेंटली आपको फील्ड में रिसर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, मार्केटिंग रिसर्च के लिए जाना पड़ेगा, या कंपनीज के साथ इंटरव्यू करना पड़ेगा जो कि आपके प्रोस्पेक्टिव है। तो वो वाला एलिमेंट है जो किताबी नॉलेज MBA का, आई दैट आई एग्री कि वो एलिमेंट है, वो तो बेस्ट नॉलेज आपको गूगल पे मिल जाएगा। हार्वर्ड का भी केस मटेरियल, MIT का भी केस मटेरियल, IIM का भी, सबका ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, फील्ड वर्क, और आप लोगों के साथ मिल रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम करो, वो इररिप्लेसेबल है मेरे ख्याल से। Yes, Saurabh, please. You have something to say now. I think I'll just build on to what Atul sir said. मैं थोड़ा ना एम्प्लॉयर व्यू पॉइंट देता हूँ। सो चाहे आप ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़िए, चाहे आप फिजिकल क्लासरूम में जाके पढ़िए, इवेंचुअली आपको जॉब करना है, या तो अपने लिए करना है या तो एम्प्लॉयर के लिए जॉब करना है। सो इफ गिवन अ चॉइस, व्हेन सो मेरे को जो बंदा जिसे मैं हायर करूंगा, वो बंदा एक्चुअल सेल ऑनलाइन नहीं करने वाला है। अगर उसे चश्मा बेचना है, वो या तो कस्टमर दुकान पे आ रहा है, उसको चश्मा बात कर रहा है वो, या फिर लेट्स से वो कंसल्टेंट है, तो वो जाके किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के CEO से बात कर रहा है और कोई अपना सोल्यूशन से पिच कर रहा है, या फिर लेट्स से वो जूता की दुकान में है तो जूता बेच रहा है, या फिर वो कंप्यूटर की दुकान में कंप्यूटर बेच रहा है। सो ही इज डूइंग अ फिजिकल इंटरेक्शन विद अ ह्यूमन। I'm not talking about online sales, e-commerce की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking about real field sales। अगर मैं उसकी बात करूं तो I strongly feel कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे हम सिर्फ ABCD नहीं सीखते हैं, सिर्फ कॉटलर के मार्केटिंग ज्ञान नहीं सीखते हैं, उससे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं सीखते हैं। हम उससे इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विथ पीपल, हाउ टू रिमूव योर स्टेज फियर, how to, I don't know, we learn a lot of things when we physically do things and interact with, let's say 20 people। हम competition सीखते हैं कि हम 50 लोगों से compete कर रहे हैं। घर बैठे बैठे मैं ऑनलाइन फिलिप कॉटलर का यार 5 P's of marketing तो सीख लूंगा, पर उसे अप्लाई कैसे करूं मैं? तो जो कुछ चीजें हैं जो बिहेवियरल ट्रेट्स, मुझे याद है जब मैं MBA किया था तो मेरा कैट का एग्जाम नहीं हुआ था, मेरे को साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था, एंड मेरे को 17 बिहेवियरल ट्रेट्स पे मेरे को असेस किया गया था और उसको कंपेयर किया गया था, क्योंकि
क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट में कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है। तो मेरा जो पर्सनल असेसमेंट हुआ था, my assessment was compared with Anand Mahindra, it was compared with Ratan Tata। तो उनके बेंचमार्क्स बने थे कि रतन टाटा लेट्स से लीडरशिप में अच्छे हैं, किसी का कंपैशनेट लेवल ज्यादा है, किसी का अग्रेसिवनेस ज्यादा है, किसी का एम्पैथी ज्यादा है, किसी का एथिकल वो ज्यादा है। सो ऐसे 17 ट्रेड्स पे जज किया गया था व्हेन आई जॉइंड MBA कॉलेज, और बेसिस दैट हमें डिवाइड किया गया था एंड देन पढ़ाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्किल सेट ऑफ द पीपल। एंड सो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज आप क्लास ऑनलाइन ट्रेनिंग में नहीं हो सकता है, जहां मैं बैठे हुए एक AC चला के एक कमरे के अंदर ट्यूबलाइट जला के मैं बात कर रहा हूँ, मेरी कोई लर्निंग नहीं हो रही है। इट इज लाइक हम अभी बात बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर फील्ड पे उतर के कुछ करना होगा तो आधे लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज व्हाट, सो एज एन एम्प्लॉयर आई वांट पीपल जो जिन्होंने फिजिकली काम किया है और उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से गुजरे हैं, and then I would like to hire them rather than somebody जो Zoom के क्लासेस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो तुमने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बोला, अगर जैसे बहुत सारे बी स्कूल आर मोर ऑफ अ मेंटल स्ट्रेस देन फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है, उनको अगर मैं बोलूंगा कि फील्ड में दौड़ के सेल्स करके आओ, उनके भी पसीने छूट जाएंगे कि नहीं यार मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, मैंने तो सोचा था कि AC रूम में बैठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा ब्ला ब्ला। तो उसमें मैं मतलब मेरा जो पॉइंट था एक एक्सकर्शन वाला, कि एक्सकर्शन जम के होना चाहिए, जो बी स्कूल्स में होते भी हैं, आई थिंक इंटरनेशनल में ज्यादा होते हैं, लोकल वाले में भी होते हैं, उतने नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा जो रीराउट हो रहा है, उसको थोड़ा सा आई डोंट नो फील्ड ट्रिप्स में डालें, इंडस्ट्रियल विजिट करें, थोड़ा एक्सकर्शंस करें, ठीक है। तो so what you are saying ना, तो वो as an employer भी that will actually add more value to that, like तुमने भी अगर अपने आप को 2 साल या 1 साल जो भी 2 साल का होगा आई गेस MBA, उसमें तुम्हारा जितने भी एक्सकर्शंस हुए 3-4 हुए होंगे आई गेस, तो वो 3-4 के जगह अगर 40 एक्सकर्शंस हुए होते जो तुम्हारे इनफैक्ट क्लियर देखो में आने के बाद हुए, राइट, जैसे हम लोग भी JP यूनिवर्सिटी में मिले, that was an excursion for you, right? They invited you, you went there, and you build network, you learn a lot of things. So वो learning का replacement, that is like a different level of learning altogether. और अभी स्कूल कॉलेज उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यस नीरज प्लीज। आपने जो बात बोली विशाल जी, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि US में अभी कुछ यूनिवर्सिटीज का मैं पढ़ रहा था, जो भी नामी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम में मोर देन 50% ऑफ एजुकेशन इज नॉन एकेडमिक, मतलब वो क्लासरूम एजुकेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व है। और पता नहीं हार्वर्ड या कौन सी, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, INSEAD एक है, INSEAD भी है। हाँ, उसमें तो 60% तक उन्होंने बढ़ा दिया है कि प्रैक्टिकलिटी 60% रहेगी, क्लासरूम एजुकेशन जस्ट 40% रहेगी। तो ये चीज बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत जल्दी आ गई है और कहीं बहुत पहले से थी कुछ हद तक और बढ़ रही है। इंडिया में अभी इसकी जरूरत है। इंडिया में अभी भी क्लासरूम एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है और वही सब घिसे पिटे पेपर क्लियर करना, लिखना और वो सब उन चीजों पे काम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे चेंज आ रहा है, प्राइवेट फील्ड अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है इन मामलों में, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज कुछ, स्पेशली अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो सोनीपत में तो पूरी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बन गई है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आई हैं और वो बहुत अलग डिफरेंट वे से एजुकेशन पे काम कर रही हैं। मेरे कुछ रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, उनसे सुनने में आता है तो कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं, उनकी स्टाइल ऑफ एजुकेशन अलग ही हो गया है वहाँ पे। दूसरा मैं एक बात कर रहा था जो अतुल सर ने बोली, नेटवर्किंग, जो आपका लाइफ टाइम एक नेटवर्क बनता है फिजिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन से। 2011 में जनवरी की, मतलब 1 या 2 जनवरी की बात है, मैं अमृतसर जा रहा था और ट्रेन रात की थी, लगभग 9-10 बजे की ट्रेन थी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो मैं जाके बैठ गया और बहुत ठंड थी, साथ में एक माँ बेटा, माँ थोड़ी सी बुजुर्ग थी, उनका बेटा था, मेरे से होगा कोई मतलब 10-1 साल बड़ा काइंड ऑफ। तो वो आके दोनों बैठ गए उसी सेम बेंच पे। तो धीरे धीरे बातें शुरू हो गई, ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन मुंबई से आ रही थी। तो वो लड़का बहुत कम पढ़ा लिखा था, वो फगवाड़ा से थे, जालंधर से आगे, जालंधर से पहले लुधियाना से आगे बीच में एक फगवाड़ा नाम की जगह है पंजाब में, वहां से थे। बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन है। तो उनका एक होटल था, 30 कमरों का होटल चलाते थे वो फगवाड़ा में। फगवाड़ा के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा NRI हैं,
तो एनआरआई जब आते हैं पंजाब में तो वो होटल्स में ही रहते हैं, वो गांव में नहीं जाते हैं। गांव में दिन में चले गए, शाम को आगे वापस होटल में स्टे करेंगे। तो इस तरह का कल्चर है। काफी अच्छा चलता हुआ होटल था उनका। वो किसी काम से शादी में दिल्ली आए हुए थे, वापस जा रहे थे, तो मेरी उनसे ऐसे बात शुरू हो गई। उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कह दिया आईटी में काम करता हूँ, गुड़गांव में हूँ। तो वो एकदम मतलब इम्प्रेस से हो गए कि चलो हमें कोई उस तरह का बंदा मिला जिनके बारे में हम सुनते हैं, क्योंकि उनका अलग पूरा लाइन ऑफ बिजनेस अलग था, पंजाब के इनर एरिया से थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया है शिमला में बिशप कॉटन्स में, ठीक है, और मेरी माँ बहुत नाराज है इस चीज से, इस डिसीजन से, क्योंकि मेरा एक बेटा है, पिताजी मेरे, मैं छोटा था जब गुजर गए थे, और मैं अकेला हूँ, फिर मेरा बेटा अकेला है, और दादी के लिए पोता बहुत प्यारा है और बहुत लाड प्यार से उसको रखती थी, जो मुझे इतना पसंद नहीं था, मैंने उसको उठा के बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। और आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो आप मेरी हेल्प करो, इनको समझाओ, मेरी इनके साथ इस बात को लेके काफी टाइम से बहुत लड़ाई चल रही है। तो मेरे पास भी कुछ ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें मारी कि हाँ मैं भी सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, वहां पे ये होता है वो होता है। तो एक बात जो उस आदमी ने बोली, बिजनेस माइंडेड आदमी ने, और मतलब उसका इतना एक्सपोजर भी नहीं था इन चीजों को लेकर, उसने कहा मैंने बेटे को इसलिए डलवाया कि वहां पे है ना बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे आते हैं और उसको एक जिंदगी भर के लिए एक दोस्ती मिलेगी। ठीक है, चाहता तो मैं उसको आसपास के किसी और स्कूल में भी डलवा देता, लेकिन मेरा रीजन ये है। तो ये जो नेटवर्किंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत स्ट्रांग है। आपके जो स्कूल से कॉलेज से जो नेटवर्क बनते हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए एसेट्स हैं। अतुल सर इतने सारे नेटवर्क्स, इतने सारे लोगों के नाम लेते हैं, वो उनकी एसेट है जिंदगी में कमाई हुई। तो फिजिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन ही आपको दे सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंटीमेसी बन ही नहीं पाएगी। तो ये वो सही बात। नेटवर्किंग के ऊपर पॉइंट है। इसी पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, शो ऑफ लगेगा लेकिन होपफुली लोग उस वे में नहीं लेंगे। लास्ट वीक अभी हम लोग जो यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क अभिषेक और हम लोग करा रहे थे, तो हुआ कि सर कोई बड़े स्पीकर को बुलाइए। तो मैंने एक मेल भेजा, एक्चुअली उसका मेल जो भेजा था मैंने सब्जेक्ट वही चेंज नहीं किया, पुराना में बीआईटी मिश्रा जो कि रांची में है, वहाँ के जो स्टूडेंट बॉडी ने मुझे अप्रोच किया था कि हमें एक अच्छा स्पीकर नारायण मोती जी को आप स्पीकर ग्रुप में बुला दीजिए। तो मैंने नारायण मोती को मेल कॉपी करते हुए उनको मेल भेज दिया और विद इन फ्यू मिनट जवाब भी आ गया कि ठीक है, बट उन्होंने फिर डिटेल मांगा कब का। तो फिर टाइमिंग जिस डेट को था उनका जो एनुअल इवेंट स्टार्टअप कंटेस्ट टाइप का था, तो वो डेट में कि नहीं वो दिन संभव नहीं है। तो वही चीज मैंने ये देखा ना कि आप जानते हो लोगों को, तो जितने जो बड़े लोग हैं वो आपको जवाब जरूर देंगे अगर आपको रियली जानते हैं तो। हाँ या ना बोले वाला चीज है। मैंने उनसे नारायण मोदी से मांगा था कि आप ईएन के एडवाइजरी बोर्ड पे आ जाइए, यंग एंटरप्रेन्योर नेटवर्क जो अभिषेक के साथ बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे बोर्ड्स पे मेरे पास कोई बैंडविड्थ नहीं है, ना भी बोला, बट जवाब दिया उन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा आदमी, $3 बिलियन का आदमी या इतने वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्टेड आदमी, बट वो आपके मेल का जवाब देता है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग डील। और उसके पीछे की कहानी ये है, नारायण मोदी के साथ वाली कहानी से तो, कि मेरा जब उनसे पहला इंटरेक्शन होता है एक आईआईटी के कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उनको मिला, बोला कि आईएम सोसाइटी के एडवाइजरी बोर्ड पे आ जाइए। उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद मेल एक्सचेंज हुआ, तो उसमें मैंने अपनी कहानी सुनाई कि हाय नारायण, मैं भी आईएम अहमदाबाद में जब था एमबीए इस बैच में 99-2001 बैच में, मैं वहाँ कंप्यूटर सेंटर कोऑर्डिनेटर था। अब ये एक स्टोरी मैं एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि सामने वालों को सामने वाले की स्टोरी बहुत पसंद है। मैं अपनी स्टोरी खूब प्यार से बताऊंगा, और सौरभ जी अपने क्लियर देखो की स्टोरी में कभी नहीं थकेंगे, विशाल अपने लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग में कभी नहीं थकेंगे। सबकी अपनी स्टोरी जो होती है वो फेवरेट होती है। तो मैंने उनको ये बोला कि सर मैं भी आईएम अहमदाबाद में जब था तो कंप्यूटर सेंटर कोऑर्डिनेटर था, मतलब कि स्टूडेंट वॉलंटियर जो होते हैं। तो और तो कुछ और मैंने एग्जांपल दिए कि तो मुझे इसलिए मैंने वो स्टोरी सुनाई उनको दिया, क्योंकि मुझे ये पता था कि उनका पहला जॉब ही वहीं उसी सेंटर में था। नारायण मोदी का पहला जॉब पटनी में नहीं था, इन्फोसिस में नहीं था। पटनी के पहले वो आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के बाद पहला जॉब उनको आईएम अहमदाबाद के कंप्यूटर सेंटर में था, सिस्टम सीनियर सिस्टम एनालिस्ट समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगा कि वो उनके हार्ट को छुएगा कि जहाँ पे मैंने पहला नौकरी स्टार्ट की वो यहाँ पे फ्री में स्टूडेंट वॉलंटियर करता था, या जो भी कारण है। तो वो स्टोरीज का पावर मैंने देखा कि सामने वाली की अगर आप स्टोरी समझते हो, सामने वाले की क्या पैशन समझते हो, तो फिर आपको
सेल्स में थोड़ा आसानी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई चश्मा या कोई स्टार्टअप नहीं बेच रहा था, यहाँ मैं एक नॉन प्रॉफिट को बेच रहा था, बट चूंकि उनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी में कुछ कॉमन पॉइंट थे तो उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया। और यही चीज मैं बार बार लोगों को एम्फसाइज करता हूँ। जो नेटवर्क का पॉइंट बोला ना नीरज ने, कि हाँ नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क इज नॉट जस्ट कि आप कितने लोगों को जानते हो, लोगों को जानना उनका ईमेल होना, फोन नंबर नहीं है, जानना है कि उनके बारे में जानना, कि डू यू नो व्हाट दैट पर्सन इज पैशनेट अबाउट, या उस पर्सन की लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रही है। बड़े बड़े लोगों की लाइफ में भी चैलेंजेस आती है, बट एज लॉन्ग एज यू कैन थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव देन दैट पर्सन विल विलिंग टू लिसन टू यू। बट अदर्स केवल अपने बारे में बात करेंगे तो शायद सामने वाला इंटरेस्ट लूज कर जाएगा। सॉरी नीरज, मैंने लंबा बोल दिया, बट अब कंटिन्यू। नहीं सर, बिल्कुल रवि आपने जी राइट बोला। ये रवि wanted to मार्केटिंग say. में भी पढ़ाया जाता है ये, कि आपको अगर किसी बंदे को अप्रोच करना है और फर्स्ट टाइम में हिट करना है, तो लाइकेबिलिटी का फैक्टर होता है। लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो उनको अपने जैसे लगते हैं। ये मार्केटिंग की क्लास में ही पढ़ाया जाता है। Yes, Mr. Ravi, you wanted to say something, please. Ajja, my point was with Saurav. Saurav what said about MBA, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट था उसी में, व्हाट सौरव वाज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन द पॉइंट इज सेल्स के लिए एमबीए चाहिए भी नहीं। आई विल से कि सेल्स के लिए एमबीए चाहिए भी नहीं, इट्स पर्टिकुलर टू दैट पर्सन। लेकिन हाँ, मार्केटिंग के लिए यू नीड टू हैव अ एमबीए काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू गो थ्रू एमबीए प्रोसेस एंड देन यू विल हैव अ बेटर मार्केटिंग एस्पेक्ट्स इन यू, बट सेल्स के लिए इट डजंट रिक्वायर, क्योंकि जो फ्रंट लाइन में सेल्स के लिए बंदा रहता है ना, सी ऑल दिस IIM पीपल दे नेवर बी इनटू सेल्स, दे गो टू द मार्केटिंग, दे बी इनटू स्ट्रेटजी पोजीशंस वेयर दे नेवर बीन एक्सपोज्ड टू द मार्केट, और बहुत ही कम एक्सपोजर होता है उनको मार्केट का। दे बी इन द ऑफिस एंड दे सेंस एवरीथिंग एंड देन दे डिजाइन। लेकिन सेल्स इज रवि जी, इस पे थोड़ा सा मैं इस पे करेक्ट करना चाहूंगा। मेरे हाँ, क्लास के जो स्मार्टेस्ट जो लोग थे, तो एक हाँ, तो जमाने में मैकिंजी और BCG सबसे पॉपुलर था, पर जितने जो स्मार्टेस्ट जो थे उनका फर्स्ट जॉब, उनका प्रेफर्ड जॉब क्या था? यूनिलीवर में सेल्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल सेल्स, जो FMCG कंपनीज या पेप्सी, कोका कोला, तो उसमें जो लोग सेल्स वाला जॉब हमेशा फर्स्ट चॉइस होता था, क्योंकि सबको, मुझे आइडिया नहीं था, मैं उस बैकग्राउंड से नहीं गया था, बट जितने सारे लोग टॉप पोजीशन में पहुंचे ना, वो सारे लोगों ने स्टार्टिंग सेल्स से किया। जब मैं अपने एक और एग्जांपल देता हूँ, जी में और जनपैक में, मैं जो जनपैक में जो मैं CEO टाइगर त्यागराजन, उनका पहला क्या जॉब क्या था? या एक और बहुत फेमस है अजय बंगा मास्टर कार्ड के CEO है, बट वो पहले पिज्जा हट या किसी तो उसमें थे उनके पिज्जा हट का स्टोर, मुझे कुछ ग्रुप्स संभाल रहे होंगे, तो उन सारे लोगों ने पहला जॉब जो है ना सेल्स से स्टार्ट किया। चाहे आप पेप्सी में करो, कोका कोला में करो, बड़े कंपनी में करो, छोटा कंपनी में करो, या आप क्लियर देखो बेचो, बट सेल्स का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और MBA में पहले उतना ज्यादा जो उनका बैकग्राउंड उनको पता है, और ज्यादातर MBA स्टूडेंट का ड्रीम यही होता है कि वो सेल्स में जाए। क्योंकि मेरा एक्सपोजर नहीं था, तो मैंने गलती से मैं बड़े कंपनी के नाम पे जी में चला गया। मेरे पास दोबारा चॉइस होता, मैं रिवर्स कर सकता लाइफ को, I would have wanted to take the first job as sales guy। बहुत सारे जो आप किसी भी टॉप MBA कॉलेज में जाओगे, चाहे आप कंसल्टिंग तो ऑब्वियसली पॉपुलर हो गया है, और प्राइवेट इक्विटी, VC एंड ऑल दैट, बट सेल्स आज भी सारे MBA कॉलेजेस में बहुत वैल्यूड जॉब माना जाता है। और स्पेशली लोग चाहते हैं बड़ी कंपनी का सेल्स, पेप्सी, कोका कोला एंड मास्टर कार्ड एंड वीजा, तो बड़ी कंपनी सेल्स को काफी वैल्यू किया जाता है MBA में। सर आई थिंक रवि जी ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा पॉइंट, IIM के लोग यूजुअली मे बी दे वुड स्टार्ट विद सेल्स, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी का प्रोफाइल मिलता है। जब ये पेप्सी और कोक में मैंने खुद इंटर्नशिप किया था, मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आया था, आई हैड रीजंस आई डिडंट जॉइन देम, बट ये लोग मैनेजमेंट ट्रेनी का प्रोफाइल देते हैं IIM के लोगों को, या फिर टॉप 20 स्कूल के ग्रेजुएट्स को, एंड दे आर एक्सपोज टू सेल्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन ऑपरेशन, सब में करते हैं, और एक साल हर जगह घुमाते हैं, पूरा इंडिया घुमाते हैं, एंड दे फिक्स अप अ रोल एट अ सीनियर स्ट्रेटेजिक लेवल। सो व्हाट रवि इज ट्राइंग टू से कि दे डोंट कंटिन्यू टू बी इन सेल्स। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सौरभ, मैं इसी पे दैट पॉइंट, आई एम नॉट अकाउंट द सेल्स प्रोफाइल एज इट। मैं अभी बताता हूँ लाइव एग्जांपल, मैं अपना बताता हूँ। आई वाज देयर इन वोडाफोन, आई डिड माय MBA फ्रॉम IIMS भुवनेश्वर, ठीक है, और मैं वोडाफोन में एज ए ET ज्वाइन किया था, और विद इन 6 months आई हैव बीन इन रिलेशनशिप मैनेजर, और मेरे अंडर में
FMS दिल्ली का MT आया था, आई वॉज ट्रेनिंग हिम, तो वो ऑलमोस्ट 3 months के लिए मेरे मार्केट में he was under me, he was reporting to me, all the things was happening under me for him. But again, after that AMT training got over, he got into the Vodafone central office in Ranchi. Okay, so this is what I was talking about कि sales के लिए you don't require even a MBA. और मोर ओवर एट फ्रंट लाइन जब हम लोग किसी भी क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो देयर वी डोंट एक्सपोज एज अ MBA, but the way we deal to sell the products in terms of maintaining relationship और जो भी चीजें हैं that applies on, that is very practical situations we take on and then we do it. Completely agree with you. और उसमें कभी कभी MBA disadvantage हो जाता है, MBA के साथ अभी कभी-कभी थोड़ा फॉर arrogance आ एग्जाम्पल आई जाता है। टेल यू सर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताऊं कि आप ओवरऑल आप देखिए तो एप्पल का जो CEO थे अपना, ऑलवेज आई फॉरगेट हिज नेम, Steve Jobs. स्टीव जॉब्स, ही वाज नॉट एट ऑल इन MBA, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स था, द वे ही सोल्ड हिज एप्पल वाज एंटायरली डिफरेंट. वही चीज कहीं हद तक माइक्रोसॉफ्ट में नहीं था, बिल गेट्स में नहीं था, सेलिंग स्किल्स नहीं था, उनके पास में टीम मैनेजमेंट स्किल ज्यादा अच्छा था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा था. तो मेरा वो कहना था कि सेल्स के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी डिग्री इन टर्म्स ऑफ MBA और ऑल, कि आप सेलिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इवन अ चाइल्ड कैन स्टार्ट, और इवन 42 years 45 years people who has already derived from his career in terms of technical things can come to open an office company and then he can start up. So like that I just want to add. पूरे इंडिया में 1 लाख ठिया लगता होगा, एक भी MBA नहीं है. So that is the point. Yes, Mr. Hari. नहीं, इसको ठीक है, और थोड़ा सा समझेंगे कि एनीवे मिस्टर हरी, आप प्लीज क्लोजिंग रिमार्क करते हैं, बताइए. जी मैं बस यही बोलना था कि सेल्स इस ये जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल बोलो या कुछ भी या किसी का खुद का पर्सनल बिजनेस बोलो, ये बहुत चीजें सिखाता है आदमी को. और जो MBA की जो आप बात कर रहे हो, MBA is actually that is a professional way या प्रोफेशनल डिग्री बोलिए, जहाँ पे आपको नॉलेज दिया जाएगा, राइट. बट उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो तो आपको फील्ड पे ही सीखना होगा. दैट इज नॉट टॉट एनीवेयर इन एनी स्कूल और कॉलेजेस, एनी प्रोफेशनल डिग्री, इवन MBBS. वहां पे आपको एक दो बार जस्ट दिखाया जाएगा कि ऐसे ऐसे होता है, बट आप प्रैक्टिकली जब करोगे, एक डॉक्टर को जितना एक्सपीरियंस होता है उतना ही वो आगे जाके एक्सपर्ट बनता है, मतलब उतना ही वो ज्यादा अच्छा डॉक्टर है, उसका नाम बनता है, मींस एक्सपर्ट कहलाता है. बट सेल्स में भी वही है, आप सेल्स करते करते कुछ लोग इतना अच्छा सेल्स करने लग जाते हैं कि वो मैनेज करना सीख लेते हैं खुद को. MBA is nothing but managing yourself and your organization in a perfect way. कि आपको अगर आपका खुद का बिजनेस है तो कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे ग्रो करना है, ये चीज आपको MBA में कुछ आइडियाज मिलते हैं वहां पे. MBA करने से कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना उलझ जाते हैं प्रॉब्लम्स के बीच में कि वी नॉट इवन नो व्हाट इज द फर्दर स्टेप नाउ. तो उन केस में इवन आई हैव सीन मेनी while I was in Wellingtons, I have seen many doctors who took admission for this PGDM in Wellingtons, जो जिनको कम से कम 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे भी लोग आए, 20 years एक्सपीरियंस वाले भी लोग आए, जस्ट टू इंक्रीज देयर स्किल्स. और जो थिंकिंग का जो हमारा लिमिटेशन आ जाता है एक उम्र के बाद या एक एक्सपीरियंस के बाद, चीजें चेंज हो जाती है. 20 साल के बाद चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसे आज है, तो उनके लिए अपने स्किल्स अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है, तो दे कैन डू MBA. सो एज सच कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि इफ यू गेट इंजीनियरिंग देन यू बिकम एन इंजीनियर, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. इवन अभी अब ऑटोमोटिव में भी अगर जाओगे सेक्टर में, मोस्ट ऑफ देम आर 12th पास, ITI और डिप्लोमा. ऑटोमोटिव बोलो या वर्कर क्लास जो होता है वो लोग वही होते हैं मोस्टली. और जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स आते हैं वहां पे इंजीनियरिंग करके, वो भी कुछ ऐसे सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करते हैं जिनके पास खुद के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होती है.
but still they have to do it because you don't have a practical knowledge. तो वो एक चीज है जो मैं श्योर बोलना श्योर। तो आई थिंक व्हाट वी आर गेटिंग एट इज प्रैक्टिकल चीज को ज्यादा डालना होगा फिजिकल यूनिवर्सिटी स्कूल्स को टू प्रोबेबली यू नो ultimately yeah aim is the same thing कि आपको you should use what you have learned यानी करेक्ट जैसा हाँ वो जो मूवी थी कौन सी मूवी में थ्री बोल रहा हूँ इडियट्स उसका नाम थ्री इडियट्स नहीं थ्री इडियट्स तो थी बट उसके ईश्वर अलावा एक नहीं ये चाइना टाउन टाइप की एक मूवी थी अक्षय कुमार की उसमें वो चांदनी चौक टू बावर्ची चाइना था तो चांदनी काटना चौक सीखता टू है ना चाइना करेक्ट करेक्ट हाँ तो जैसे काटता है वो 10 साल से वो कुंफू वैसे उसी लेवल से वो करेगा तभी वो कुंफू सही होगा उसका ऐसा है सो आपने जो रेगुलर किया है 10 साल तक या 5 साल तक जो पढ़ाई की है या बोलो सेल्स किया है तो उसके बेसिस पे आप कुछ और सीख के आगे बढ़ सकते हैं यही चीज मैं बोल रहा था उसमें सही बात। चलिए ठीक है आज टाइम ओवर हो गया कल डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू और टॉपिक्स पे ठीक है चलिए गुड नाइट Good night, everyone. ओके गुड नाइट